Hello students, how are you all? This is Mr. Shivam Dhiman and from now onwards I will be taking your social studies. Today's video is for class 7th and the topic is atmosphere and its layers. So students, as we know that the atmosphere is the major part or major domain of the earth. Like other spheres, hydrosphere, lithosphere and biosphere. It is also necessary because when the other three domains like lithosphere, hydrosphere and atmosphere combines together gives rise to the life which exists on earth, which forms the fourth domain called as biosphere. Atmosphere होता क्या? Atmosphere is the layer or a huge blanket of air on this earth. अर्थ के चारों ओर एक बड़ी सी हवा की चादर है, घनी हवा की चादर है जो उसके चारों ओर फैली हुई है, इसे ही एटमॉस्फेयर कहा जाता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड अंडरस्टैंड द कॉम्पोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर. I have drawn a pie chart to explain you the layer composition of air or atmosphere. Students, we know that there are many types of layers or forms of gases present in our air or atmosphere. 78% is our nitrogen, 21% is the oxygen and only 1% is the carbon dioxide, hydrogen, helium, ozone and argon. Students, these gases also play a vital role in the atmosphere. ये गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करती हैं. हाउ? नाइट्रोजन इज अ गैस विच इज एसेंशियल फॉर द प्लांट्स. व्हाई? बिकॉज द राइजोबियम बैक्टीरिया, द नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया helps to absorb the atmospheric nitrogen and then fix it into the root nodules of the plant, increasing the fertility rate of that plant. तो नाइट्रोजन क्यों एसेंशियल है? क्योंकि ये प्लांट को हेल्प करती है फर्टिलिटी रेट ग्रोथ करने में, और दूसरा कि जो राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं या ऐसे बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं रूट लेग्यूमिनस फलीदार पौधों की जड़ों में, वो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को सोख करके उनकी जड़ों में बांध देते हैं, और इस तरह से जो फलीदार पौधे होते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा फर्टिलिटी रेट यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्रॉप्स का उत्पादन कर पाते हैं. 21% is the oxygen. 21% is the oxygen and it maintains the life on this earth. Oxygen, as we all know that oxygen is the main gas or the pure air which is needed for us for respiration and breathing and for the breakdown of glucose to give out energy, and it is also essential for the photosynthesis, for performing the photosynthesis and exchange of gases, and it is also helpful because if oxygen is not present then combustion or burning does not take place. तो ऑक्सीजन क्यों इम्पोर्टेंट है? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सांस लेने के लिए शुद्ध हवा की जरूरत है, वो कौन सी है? ऑक्सीजन. दूसरा कि ऑक्सीजन कई बायोकेमिकल प्रोसेस में भी हेल्प करती है जैसे रेस्पिरेशन में. और तीसरा ऑक्सीजन का रोल ये है कि ऑक्सीजन के बिना कोई भी वस्तु जल नहीं सकती है. एंड द 1% इज कार्बन डाइऑक्साइड because it is a major gas which is needed by plants for photosynthesis, and some other gases are also there like helium, ozone, which also have their important role in the atmosphere. Now
we will know about the advantages of atmosphere. What are the advantages of atmosphere? First of all, if we see this diagram, we can say that it has many major roles, like the advantages given by these gases. Atmosphere gives many valuable gases for our life processes. Second, it helps in the water cycle by formation of cloud and precipitation. It maintains a suitable temperature on the earth. It reflects back the harmful radiations of the sun, and also it causes the meteorites to burn in that layer without falling on the earth and damaging it. So एटमॉस्फेयर हमारी कई तरीके से हमारी हेल्प कर रही है। जैसे कि अगर हम इन गैसेस की बात करें तो ये गैसेस हमारी लाइफ में बहुत ही वाइटल रोल प्ले करती हैं, तो ये कैसे पाई जाती हैं एटमॉस्फेयर में। फिर दूसरा जो वर्षा मतलब वाटर साइकिल है वो भी इसी एटमॉस्फेयर के कारण ही हो पाती है। एंड मैनी लाइफ प्रोसेसेस टेक प्लेस, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने के लिए या आपका टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए अर्थ में, या जैसे हमारे एटमॉस्फेयर में ओजोन लेयर पाई जाती है जो क्या करती है हार्मफुल रेडिएशन, सन की जो हार्मफुल रेज है उसको रिफ्लेक्ट बैक कर देती है। और भी ये भी है कि जब अंतरिक्ष उल्कापिंड जब गिर रहे होते हैं तो वो इतनी वेग से होते हैं कि वो हमारे इतना जो एटमॉस्फेयर में कुछ लेयर्स में इतना टेम्परेचर हाई होता है कि उसको वहीं वो बर्न अप कर देता है और धरती पर गिरने से बचाता है, जिससे कि किसी भी जनजीवन की हानि ना हो पाए। नाउ we will understand the layers of the atmosphere. Students, look at the blackboard. I have drawn a earth. I have drawn the earth. I have drawn the earth and have drawn the various layers of atmosphere. Our first layer is troposphere. The layer of atmosphere which is near to the earth is the troposphere. And the second layer is stratosphere. Then mesosphere, the middle layer. Then it is ionosphere. And outermost is the exosphere, means the outermost part of the layer of atmosphere is exosphere. So students, sometimes in the books it is given as there are 6 layers, and sometimes it is given the 5 major layers which are troposphere, stratosphere, mesosphere, ionosphere and exosphere. There is also one layer present in between the ionosphere and exosphere which is known as thermosphere. So, beginning with the length of the each layer of atmosphere, the length keep on increasing. As we see that the length of troposphere is 8 to 14.5 kilometers, then it is 50 kilometers in the stratosphere, then in the mesosphere the length increases up to 50 to 85 kilometers, in the ionosphere 60 kilometers length is present, and the highest layer length is found in the exosphere which is about 10,000 kilometers and above. Students, now we will know about the troposphere.
troposphere is that layer of earth which that layer of atmosphere which contains the most part of our atmosphere, and the weather changes takes place, as well as it contains the high level of oxygen in this layer. The weather changes also takes place in this. So up to the above layer, the jet aircraft are flown. तो स्टूडेंट्स, ट्रोपोस्फियर में ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन की मात्रा पाई जाती है, और ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन पाए जाने के कारण मेन जो मतलब हम अगर जो ऊपर जाते जाएंगे तो धीरे धीरे ऑक्सीजन की लेवल कम होती जाएगी. दैट इज वाई द माउंटेन क्लाइंबर्स और द पर्सन्स हु गो फॉर ट्रैकिंग फॉर माउंटेन क्लाइंबिंग कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर, बिकॉज एट एन हायर एल्टीट्यूड the level of oxygen reduce. To between the in between the troposphere and stratosphere there is a layer of ozone. There is a layer of ozone which is known as tropopause. इसे क्या कहते हैं? ट्रोपोपॉज कहते हैं. जो ओजोन लेयर ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर के बीच में एक लेयर होती है ओजोन की, ओजोन लेयर पाई जाती है, और इसे ट्रोपोपॉज भी कहा जाता है. दिस इज फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑक्सीजन में दो मॉलिक्यूल्स होते हैं ऑक्सीजन एलिमेंट के, एंड ओजोन में 3 मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन एलिमेंट के पाए जाते हैं. तो जब जो हमारे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं जो हम एरोसोल्स में या रेफ्रिजरेटर्स में यूज करते हैं, वो इसको तोड़ देते हैं. किसमें? ओजोन से ऑक्सीजन में, जिससे कि एक मॉलिक्यूल जो ऑक्सीजन का होता है वो घट जाता है. इसीलिए हमें CFCs का या एरोसोल्स का यूज कम करना चाहिए, बिकॉज इट cause the ozone layer depletion. So ozone layer is very essential because it helps to prevent the earth from the UV radiation, from the harmful UV radiations of the sun. Now stratosphere is that layer of atmosphere which is clear, and it has sometimes the highest higher temperature or can be lower temperature like 0 degree Celsius. तो टेम्परेचर जो है वो अप एंड डाउन इस लेयर में होता रहता है, और वेदर चेंजेस जो हैं वो उसके नीचे लेयर में करते हैं, ऊपर नहीं करते. इसीलिए जो जेट एयरक्राफ्ट है वो यहाँ पर उड़ते हैं, और समटाइम्स हॉट एयर बैलून्स आल्सो फ्लाई इन दिस रीजन. नाउ mesosphere. Mesosphere is the middle layer of atmosphere which is 50 to 85 kilometers in length, and it has the low level of atmosphere, low level of temperature. mesosphere में सबसे कम तापमान पाया जाता है which can be -14 degree Celsius, and it is the place where the meteors fell down to burn and convert into ashes. तो मेसोस्फीयर में ही वो एटमॉस्फेयर की वो लेयर है जिसमें मिटियोर्स जो मेटेओराइट्स होते हैं वो गिर करके भाप बन जाते हैं या खत्म हो जाते हैं. एंड द अदर लेयर एंड टू द अबव ionosphere layer of atmosphere is found. Ionosphere is found and it is 60 kilometers. and ionosphere का नाम ionosphere क्यों पड़ा? Ionosphere because in this sphere the positively the electrically charged particles or elements are found.
आयनोस्फीयर में इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स या एलिमेंट्स पाए जाते हैं जिनको आयंस कहा जाता है। अब ये आयंस जो हैं जब मैग्नेटिक फील्ड सन और अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से डिस्टर्ब होते हैं या इफेक्ट होते हैं तो वो कलरफुल बैंड्स ऑफ लाइट्स फॉर्म करते हैं, जो कि बहुत बड़ी कलरफुल बैंड ऑफ लाइट होती है जिन्हें ऑरोरास कहा जाता है। और ये कहाँ तक ज्यादातर कहाँ पाए जाएंगे? पोल्स में, नियर द पोल्स। एंड इट ऑल्सो plays a vital role because in this layer many satellites are found for the radio signal transmission। और यही वो लेयर है एटमॉस्फेयर की जिसमें सैटेलाइट्स पाई जाएंगी, जहां पर आपकी रेडियो सिग्नल ट्रांसमिशन होता है थ्रू सैटेलाइट्स, है ना। तो या रेडियो कम्युनिकेशन या सिग्नल्स भेजे जाते हैं, तो यही लेयर है जहां पर आपकी सैटेलाइट होती है। एंड the above layer is exosphere, which is the outermost layer of the atmosphere, and above it we reach the universe। and in this layer the astronauts go for their study of the universe and the celestial bodies। तो ये आपका अंतरिक्ष भाग आ जाता है किसमें? एग्जॉस्फेयर। एग्जॉस्फेयर के बाद आपका जो एटमॉस्फेयर है वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। अब आयनोस्फीयर और एग्जॉस्फीयर के बीच में आपकी लेयर आती है थर्मोस्फीयर, which has highest temperature in itself। So students, this was the layers of atmosphere present on our earth। Now as we have studied that weather and climate क्या होता है? Weather is the state of atmosphere in a specific place for a specific time। तो weather क्या है? एटमॉस्फेयर का कंडीशन कुछ समय के लिए थोड़ी सी जगह का जो वेदर लिया जाता है। वेदर क्या होगा? एक जगह, एक छोटी जगह का जो उसका मौसम है ना, वो थोड़े समय के लिए ही माना जाता है। तो वेदर इज द स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर की कंडीशन एट स्पेसिफिक प्लेस, एक निर्धारित जगह पर कुछ समय के लिए ही वेदर कहलाता है। इट कैन बी द रेनफॉल, प्रेशर, टेम्परेचर एटसेट्रा। एंड व्हाट इज अ क्लाइमेट? जैसे कि कभी कभी हम लोग डेली वेदर देखते हैं, तो वेदर टेलीकास्टिंग मतलब हम लोग वेदर कैसे पढ़ते हैं? जो हमारे वेदर को स्टडी करते हैं और या जो साइंटिस्ट हैं वो जो आयनोस्फीयर में जो सैटेलाइट्स है उससे पिक्चर्स लेते हैं धरती के चारों ओर, जो मतलब वातावरण है, क्लाउड्स हैं या क्लैरिटी है कि उसमें कोई बादल नहीं है, या जो आपकी साइक्लोनिक वेव्स जो बन रही हैं वो भी पिक्चर्स आपको सैटेलाइट सेंड करेंगी। फिर जो वेदर फॉरकास्टिंग वाले होते हैं उसको फिर समझते हैं कि यहाँ पर इतनी गति से हवाएं बन रही हैं, जैसे साइक्लोन आने वाला है या बहुत तेज गति से हवाएं चल रही हैं या मानसून वेव्स आ रहे हैं। तो ये आपको बताता कौन है? वेदर फॉरकास्टिंग वाले। तो ये सब क्यों संभव है? क्योंकि जो हमारे आयनोस्फीयर में जो सैटेलाइट्स है वो पिक्चर्स, अंतरिक्ष के बाहर की पिक्चर सेंड करती हैं। अंतरिक्ष जो हमारे आयनोस्फीयर में जो सैटेलाइट्स है वो अंतरिक्ष से धरती के चारों ओर की पिक्चर सेंड करती है, क्या चेंजेस हो रहे हैं या क्या वेदर चेंजेस हो रहा है या कौन से जो क्लाउड फॉर्मेशन हो रही है या सुनामी या हाई प्रेशर विंड्स का फॉर्मेशन हो रहा है, वो वेदर के फॉरकास्टिंग वाले हमको समझाते हैं कि कल सनी डे रहेगा इस प्लेस में या कल बारिश होने की संभावना है। तो वेदर जो होता है वो डे टू डे सेम नहीं होता है, वो चेंज हो सकता है, कुछ समय के लिए सेम रहेगा हो सकता है बट हमेशा एक जैसा नहीं होगा। जैसे अगर हम 7 साल का आज का
टेम्परेचर, तापमान देखिए, अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान, तो वो चेंज होगा। अब जैसे अगर आज डेट 13 जुलाई है, तो आज सनी डे है। पिछले साल 2020 है, इस साल तो 2019 में हो भी सकता है कि रेन हुई हो या फॉगी कंडीशन या क्लाउडी हो। तो ये सब वेदर के कारण ही होता है कि वेदर जो होता है वो हर दिन का सेम नहीं होता है। कभी बहुत क्लाउडी होगा, कभी सनी होगा या रेनी वेदर कंडीशन हो सकती है। नाउ व्हाट इज अ क्लाइमेट? क्लाइमेट इज द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ दैट प्लेस। क्लाइमेट क्या होता है? एक जगह का वेदर कंडीशन जो कि कैसा होगा, एवरेज में निकाला जाएगा। यानी कि जो वहां पर जैसे अगर हम माउंटेनियस रीजन पे जाएं तो वहां पर कोल्ड क्लाइमेट पाया जाता है। प्लेन्स में टेम्परेट या मॉडरेट, ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा सर्दी, गर्मी सर्दी दोनों ही पाई जाएगी, पर ज्यादा ना गर्मी होगी ना ज्यादा सर्दी होगी। और कोस्टल रीजन्स में नियर द इक्वेटर इट इज द क्लाइमेट इज वेरी हॉट, so it also based upon the temperature, rainfall and the pressure of winds. So this was the explanation of the atmosphere and its layers. I hope you must have understood about the topic. Thanks for watching this video. Keep liking, sharing and studying. Have a nice day, students.